Hi guys, so good evening. I think you're having a good time this Saturday. I hope you're enjoying the weekend and had probably would had a long week where you have to go to office and make some stuff when you're back home. So I have a very easy recipe today that I'm going to cook. But before we get into the recipe, let me tell you a bit about myself. So I'm Arjun and I am a home chef essentially and also a food blogger by the name of Feed the Singh. And today I'm here to just present my case as a food blogger as well as a home chef. So most of you would be cooking things at home, probably some regular dal chawal or sabji. So there's a need to cook something interesting. Probably people who are chicken fans want to go beyond the chicken curry. People who are fish fans want to go beyond the regular fish fries. So you want to add that little bit of flavor. And that's what I'm going to do. So all this learning that I've had being a home chef and a home baker and also exploring. So the best thing that you know about food is when you explore. You go to places, आप कभी hills में जाते हो, कभी beach side जाते हो, कभी किसी और village जाते हो. So you get to know about new flavors. And that's exactly how you learn. So this is one of my learnings, both from learning from different chefs जिनका मैंने खाना खाया है, and also from places जहाँ पर the best food you will get. This recipe that I've prepared is probably you might know of it, and it's not very uncommon, and some of you might know a better version of it, but I'll create a version that I know and which I like. So before we get down to that, we are here at Spencer's MG Road, and it's a all of you might know that this is a place where you get all your grocery. So be it chicken, fish, any of your supplies, regular supplies, be it milk, fruits, everything is here. So I thought that I anyways come here. मैं weekend पे आता हूँ अपनी grocery supply लेने के लिए, and here I would want to cook as well because everything is fresh. So rather than going back home, I curated everything from oil to fish to fresh veggies to parsley to cheese, everything, and I'm going to make something here. So whenever you are here in Gurgaon or anywhere else, wherever you find Spencer, I think that's the best place to go. Don't need to worry about hygiene, don't need to worry about how fresh the thing is because everything is baked here or everything is cooked here in terms of whatever eatables that you get. And I believe they make sure that everything is fresh, everything is kept up to date, and you get the best food. And even the people here are quite cordial. So अगर आपको नहीं भी पता को क्या चाहिए, so you can just speak to people here and I'm pretty sure they'll help you out what to cook. So that is about so that is about that. And what we'll do is we'll get down to the food right now. So first we'll cook chicken. So before we get down to that, chicken की कुछ चीजें होती है which you should know. One is on bone and without the bone, which is boneless. So what we'll do is we'll cook boneless today because थोड़ा easy होता है बनाना and easily you'll get chicken breast everywhere. Gets cooked faster. Chicken on bone में क्या होता है, you will take a lot of time. So today the chicken recipe we are cooking is chicken in garlic sauce. So garlic, why? Because garlic, उसका एक flavor इतना सही होता है, it brings out the actual flavor of the dish, and chicken anyways will add the protein that you want. Garlic इसलिए important है because these days you might know कि you need to maintain immunity. So garlic helps in immunity as well. So that in some sense is good. And when everything good is brought together, then why wouldn't it become tasty actually? So पहले हम क्या करेंगे? So पहले हम chicken लेते हैं. So I have chicken breast with me. These are regular chicken breast. So now पहले हम क्या करते हैं, जनरली आप लोग घर पे चिकन को मैरिनेट करते होंगे either with curd or with garlic ginger paste or anything, and you keep it in the fridge. Now the good part about this dish is कि आपको इतना वरी करने की जरूरत नहीं है. First what we'll do is हम पहले इसको थोड़ा सीजन करेंगे. सीजन 3 चीज से करेंगे: pepper and salt and garlic powder. So right now actually I'm not having garlic powder, but I have roasted garlic which actually will bring out flavor better. So पहले हम क्या करेंगे, पहले हम हल्का सा डैब कर लेते हैं, एंड बिफोर दैट आप हल्का सा इसमें इंसिजन करोगे जिससे फ्लेवर्स अंदर चला जाए. सो हल्का सा पोक कर दो ब्रेस्ट को. कोई भी पीस अगर आप लेते हो, बी इट थाई पीस और अ लेग पीस, एनीथिंग, अगर आप उसको थोड़ा पोक कर देते हो, देन यू बेसिकली गेट फ्लेवर्स इनसाइड द मीट, एंड व्हाइल यूल कुक इट विल गेट बेटर. सो हमने इसको इंसिजन दोनों साइड पे भी कर लिया है.
सो बेसिकली थोड़ा सा इंसिजन करना है जिससे आपको थोड़ा फ्लेवर अंदर जा सके. तो फर्स्ट व्हाट वील डू, हम थोड़ा सा नमक लेंगे विच इज बेसिकली हाफ अ टी स्पून एंड थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे ऊपर इसके. विल एड लिटिल बिट ऑफ पेपर. सो आप या तो पेपर विच इज काली मिर्च का पाउडर ले सकते हो या आप उसको ग्राइंड कर सकते हो या पीस सकते हो. सो मैंने अभी पीसा है इसको जिससे फ्लेवर्स थोड़ा क्रंचीनेस मेंटेन रहे. सो पेपर आपने डाल लिया. नाउ इसके साथ हम डालेंगे रोस्टेड गार्लिक जो हमारे पास है, और या आप गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हो. नाउ वी गोना फ्लिप इट. आपको दोनों साइड लगाना है इसको. जब आप आराम से इसको डैप कर लो पूरा, उसके बाद आप एक और चीज आपको इंश्योर करनी है कि जब आप बना रहे हो आपका चिकन कंप्लीटली ड्राई हो. सो जब उसको वॉश कर लो, वॉश करने के बाद उसको टॉवल से आप डैप कर सकते हो. तो मैंने ऑलरेडी डैप कर लिया है, बट बिफोर यू गेट ऑन टू कुकिंग इट यू शुड ऑलवेज डैप इट विद अ टॉवल और टिश्यू और समथिंग. सो हमने एक साइड लगा लिया था, अब दूसरी साइड विल गोना पुट. सो अगेन सॉल्ट, पेपर, काली मिर्च, एंड योर गार्लिक. आप अच्छे से डैप कर लो. ये मैरिनेशन का फर्स्ट प्रोसेस है. तो विच इज बेसिकली आप सॉल्ट से हल्का सा ये इल स्टार्ट कुकिंग, एब्जॉर्व कर लेगा सॉल्ट को, और पेपर. द नेक्स्ट स्टेप टू दिस इज आप पहले एक प्लेट ले लो. इसके अंदर आपको 2 चम्मच मैदा और फ्लावर, एनी ऑल पर्पस फ्लावर ले सकते हो आप. और इसके साथ वी गोना टेक पार्मेज़ान चीज़. सो व्हाई पार्मेज़ान चीज़ इज बिकॉज ये इतना स्प्रेड नहीं करता, ये बेसिकली मिक्स हो जाता है, बाइंड कर देता है. हमको ज़्यादा चीज़ी फ्लेवर नहीं चाहिए, हमको बेसिकली बाइंड करना है जिससे जो ऊपर का लेवल हो दैट बिकम्स लिटिल चीज़ी. सो देर आर 2 ऑप्शंस. अगर आप पार्मेज़ान होल लेते हो एज लाइक अ क्यूब और अ ब्रिक, आपको उसको ग्रेट करना पड़ेगा. एंड अगर आप पार्मेज़ान का एज लाइक इन अ बॉटल लेते हो जो ऑलरेडी ग्रेटेड है, देन उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट यू डू, आप इसको 2 चम्मच मैदा आप ले लोगे. आप ज़्यादा भी ले सकते हो अगर आपका ज़्यादा चिकन है. सेम अमाउंट आपको पार्मेज़ान चीज़ चाहिए. आप उसको अच्छे से मिक्स कर लो. So this will basically form the coating of the chicken. And basically कि क्या करेगा कि चिकन को कुक भी करेगा, बट ऊपर की लेवल को, ऊपर का जो इसका सरफेस है, इट वोंट बर्न इट. सो you'll have this good crunchy texture. एंड इसको हमको डीप फ्राई नहीं करना है, हम सिर्फ पैन फ्राई करेंगे इसको. सो उससे क्या होगा कि एक तो you'll have don't have excessive oil, और it won't feel too crunchy or too oily. सो हमको क्या करना है, हम मीन वाइल वॉट वील डू इज वील हीट द पैन. सो आप इसको मीडियम पे ऑन कर लो. मीडियम हीट पे हम ऑन कर लेते हैं पैन को, और वॉट वील डू इज वील ऐड बटर एंड ऑयल टुगेदर. सो द रीजन वाई वील ऐड बटर एंड ऑयल टुगेदर इज बिकॉज ऑयल एज बर्न्स लेट, थोड़ा देर में इट इवेपोरेट्स, वेयर एज बटर जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, बर्न कर जाता है. सो टू गेट द फ्लेवर ऑफ द बटर एंड टू मेक श्योर दैट इट कुक्स, और आपको ज्यादा ऑयल ना डालना पड़े, ज्यादा बटर ना डालना पड़े, तो मिक्स कर देते हैं दोनों को. सो व्हाट वील डू, हमारे पास बटर है, सो आई एम यूजिंग अनसॉल्टेड बटर. रीजन अगेन उसका ये है कि सॉल्ट आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए. अगर आपको सॉल्ट और चाहिए होगा आप ऊपर से डाल सकते हो. सो बटर में यू डोंट वांट टू इंक्लूड द सॉल्ट. सो व्हाट वील डू, हम पहले बटर डालते हैं. सो आप 1 चम्मच बटर डालोगे, और हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालते हैं. इसको लो में कर लो, थोड़ा लो में कर लो, बॉर्न हो जाएगा. तो हमको क्या करना है अभी, ये अपना इसको हम थोड़ा स्प्रेड कर लेते हैं. लो में कर लो थोड़ा और. अब हमको क्या करना है, हमको कुक करना है चिकन को.
सो व्हाट वी डू इज हम इसमें इसको ट्विस्ट करेंगे, जस्ट मेक श्योर ये पूरा अच्छे से इसमें हो जाए, आपका जो मैदा है और पार्मेजान चीज़ है अच्छे से इट मिक्सेस टुगेदर। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा डैप कर देंगे जिससे एक्सेस ना रहे इसके अंदर और पूरी तरह मिक्स भी हो जाए। सो व्हाट वील डू, वील ऐड द चिकन ब्रेस्ट टू इट। आपको अगर ज़्यादा चीज़ें पसंद है तो आप पार्मेजान और भी ऐड कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट मैदा ज़्यादा मत ऐड करना, बिकॉज एनीवेज वो कोटिंग एक बेसिक कोटिंग ही चाहिए होती है। सो चीज़ यू हैव द लिबर्टी टू ऐड एज मच एज यू वांट, एंड चीज़ किसको नहीं पसंद होता है, सो इट इज़ गुड। आई ऑल्सो लाइक चीज़, बट या सो हियर हमने एक पीस डाल दिया है, दूसरा पीस भी डाल देंगे, एंड वील कीप द थर्ड पीस रेडी। सो आपको क्या करना है कि चिकन आपको एक साइड, इसको थोड़ा मीडियम करो, एक साइड आपको अराउंड 3 to 5 मिनट्स कुक करना है। नाउ ये 5 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है कभी कभी, रीज़न बीइंग कि आपका जो चिकन ब्रेस्ट है या चिकन का जो मीट है वो कितना थिक है। सो अगर ज़्यादा थिक है तो ऑफकोर्स इट्स गोना टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट अगर थिक नहीं है, आपने उसको स्लिट कर दिया है बीच में से, देन आपको कम देर के लिए कुक करना पड़ता है। सो जब अराउंड आपका 3 मिनट हो जाए तो आप चेक कर लो कि ओवर ब्राउनिंग तो नहीं हो रही है, ज़्यादा ओवर कुक तो नहीं हो रहा है। बट अगर आप ज़्यादा भी चिकन को कुक कर दोगे तो ज़्यादा टेंडर हो जाएगा। तो यू नीड दैट परफेक्ट ग्लेज, परफेक्ट क्रस्ट। सो हम क्या करेंगे, we'll see around after 2 minutes what happens here. So while this is cooking, जब तक बन रहा है, few things about about this particular recipe is that you can, because it's a recipe which goes with sauce, so हम इसके साथ you can eat it with some amount of rice, or you can eat it with some amount of quinoa, maybe boiled quinoa in case you are a health person, or if you don't want to go all out just like that, you can eat it with sauce, because इसका हम एक sauce भी बनाएंगे which is the garlic sauce that we're gonna make. एंड दैट itself is very amazing. So हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना पड़े, बट नाउ व्हाट विल चेक इज, हम फ्लिप करने के बाद चेक करते हैं इसको कैसा है। सो एज यू कैन सी अभी थोड़ा ही कुक हुआ है, यू कैन सी लिटिल बिट ऑफ येलोनेस इन दिस, दैट मीन्स कि अभी और कुक होगा, अभी सिर्फ हाफ वे थ्रू है, 30-40% ही कुक हुआ है एक्चुअली। एंड आपको इसको मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, आप मीडियम हाई भी कर सकते हो डिपेंडिंग कि गैस स्टोव कैसा है, बिकॉज जब आप स्टोव पे कुक करते हो तो कभी आपका बर्नर बड़ा होता है, कभी छोटा होता है। सो आप डिपेंडिंग ऑन दैट आप इसको कुक कर सकते हो। बट द गुड पार्ट इज कि व्हेन यू आर कुकिंग विद बटर, द बेस्ट थिंग, द बटर की स्मेल इतनी अच्छी होती है। एक तो आप व्हेन यू आर कुकिंग यू जस्ट फील लाइक ईटिंग इट। सो हाफ वे थ्रू वी आर देयर, एंड व्हाट वील डू नाउ इज हम गार्लिक की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। सो जो सॉस हमको बनाना है, सॉस की प्रिपरेशन में हमारा सिर्फ कुछ चीज़ें यूज़ होंगी। वील यूज़ अनियंस। सो हमारे पास अनियंस हमने बिल्कुल सॉर्ट कर रखा है छोटा। सो यू कैन यूज़ वाइट अनियंस या नॉर्मल जो आपको अनियंस होते हैं। दीज डेज पीपल ऑल्सो यूज़ स्प्रिंग अनियंस के अनियंस जो होते हैं। सो योर कॉल, जैसा भी आपको अच्छा लगता हो। सो अभी हमने जो अनियंस है बिल्कुल ही छोटे छोटे काट लिए, बिल्कुल प्लेन। एंड व्हाट वील डू इज, इसको फ्लिप कर लो। सो व्हाट वील डू इज वी गोना कुक दिस अनियन इन दिस वेरी सॉस। जब भी थोड़ा सॉस जो ऑयल और बटर और चिकन का जो फ्लेवर है इसके अंदर, हम इसी में कुक करेंगे और इसी में अनियंस को ऐड कर देंगे। अनियंस के साथ वी गोना ऐड गार्लिक एज वेल। सो गार्लिक एज आई सेड हमने पूरा होल लिया है, हमने उसको छोटे छोटे में नहीं काटा है, बिकॉज जब आप पूरा गार्लिक लेते हो तो बेसिकली उसका जूस जो है यू कैन फील द जूस ऑफ इट कमिंग आउट, एंड फ्लेवर भी इन एज अ होल रहता है। इफ यू सी there's a little fume that is coming from it, so don't worry about that. एक फ्यूम है कि अगर आपको लग रहा है कि चिकन जल रहा है हल्का सा, you can add little bit of butter in it, but आपको लग रहा है कि नहीं जल रहा है, then you can probably leave it as is and cook it for around 2 to 3 minutes more. So you can hear the sound of this beautiful sizzling chicken, जिसमें बटर और बटर एंड फ्लेवर्स ऑफ सॉल्ट, पेपर एंड गार्लिक एंड आर ऑल टुगेदर. सो व्हाट वील डू नाउ इज, बिफोर वी गेट डाउन टू प्रिपेयरिंग इट, आई वांट टू शो यू कि कैसा सिजल कर रहा है ये. एंड यू कैन सी द फ्यूम्स कमिंग आउट कि वो द एंटायर बटर एंड ऑयल इज ऑल कमिंग टुगेदर.
So now what we'll do is, in case you feel now, so in many places you might feel कि नो बटर तो चला ही गया, बटर उड़ गया, so आप थोड़ा सा बटर इसमें और ऐड कर सकते हो, बट अगेन आई वोंट रेकमेंड इट ऑल द टाइम बिकॉज एक्सेसिव जब वो एब्जॉर्व कर लेगा तेल और ऑयल, देन इट वोंट लुक इट वोंट टेस्ट एज गुड. सो अभी हमारा इज ऑल राइट. सो लेट्स वेट फॉर अराउंड अ मिनट और सो. सो गेटिंग बैक टू द सॉस अगेन, आई वाज सेइंग कि ये आपका अनियन है, वील यूज अनियंस. वी हैव ये गार्लिक. सो गार्लिक वन रिकमेंडेशन दैट आई हैव इज, आपको अलग अलग साइज के क्लोव होते हैं. एक तो ये बड़ा होता है एंड ये एक स्लाइटली स्मॉलर वर्जन होता है. सो व्हाट आई विल रिकमेंड इज यू यूज अ बिगर वर्जन ऑफ इट बिकॉज जब इसको स्मैश करोगे देन इट्स गोना स्प्रेड. सो दैट वे इज गुड. और अगर आप बड़े छोटे छोटे लोगे देन यू हैव टू हैव टू मेनी ऑफ देम. सो आई वुड रिकमेंड आप बड़े बड़े लो और उसको सिर्फ पील कर दो. आफ्टर दैट शेफ इज इट डन. ओके, सो अभी भी थोड़ा कुक होना बाकी है. तो वन वे टू चेक इट, अगर आपके पास कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो, चाहे फोक यूज कर रहे हो या आपका स्टोंग यूज कर रहे हो, आप उसको प्रेस करके थोड़ा देखो. अगर वो बहुत ज्यादा टाइट लग रहा है आपको, दैट मीन्स अभी भी उसके अंदर थोड़ा टेंडरनेस नहीं, अभी थोड़ा बची है अभी, तो उसको आपको और टेंडर करना है. तो जस्ट मेक श्योर कीप ऑन पोकिंग इट अगर आपको लग रहा है कि नहीं है. अनदर वे टू चेक इट, अगर आप एक फोक ले लो, उसको पंचर करके देख लो आप कि कैसा. अगर आपको लग रहा है कि नहीं स्टिक कर रहा है अंदर, दैट मीन्स अभी भी कुक नहीं हुआ है. अनदर वे टू लुक एट इट, अगर जैसे बहुत लोगों को इनको पता अभी भी नहीं चलेगा, तो व्हाट यू कैन डू इज इसको आप हल्का सा पियर्स करके देख सकते हो कि ये कैसा है. सो अगर ये बहुत ज्यादा पिंकिश है अंदर, बिकॉज जैसे मीट का फ्लेवर पिंक होता है, देन दैट मीन्स कि कुक नहीं हुआ है. बट अगर आपको लग रहा है कि अंदर व्हाइटिश होना शुरू हो गया, दैट मीन्स इट इज कुकिंग एंड इट्स अबाउट टू गेट कुक्ड. So around 30 seconds more and this should be done. Again, so जब आपका चिकन बनने वाला हो, what I always recommend is if you are preparing a sauce with it and आपको चिकन पैन से बाहर निकालना है, then you take a plate and you put it in the microwave for a while. Because what will do is कि ये प्लेट आपकी गर्म हो जाएगी, तो इवन दो ये 5 मिनट या 2 मिनट के लिए बाहर भी होगा, तब भी ये ठंडा नहीं होगा बहुत ज़्यादा. सो शेफ इसको एक बार पलट लेते हैं, देन वील टेक इट आउट. पक गए? हाँ ठीक है, ठीक है. सो एज आई सेड, अभी दिस प्लेट इज नॉट दैट वार्म, बट आप इसको पहले माइक्रोवेव में डाल दो जब 30 सेकेंड्स बचते हैं, एंड देन यू पुट द चिकन आउट ऑन दिस प्लेट. So perfectly it is done. You can see the browning on top. So I would just show the browning here. And you can see कि अच्छे से ऊपर पक चुका है पूरा surface. And now we'll transfer it to a plate. Pause कर दो, इसको लो पे डाल दो. So now what we'll do is हम इसमें अब onions ऐड करेंगे. सो इसमें आप एक छोटा अनियन या मीडियम साइज अनियन डाल सकते हो. सो इसी सेम फ्लेवर में जो बटर और ऑयल का फ्लेवर है, वील ऐड 1 अनियन. सो आई हैव कट 1 अनियन, एक बाउल के बराबर ऑलमोस्ट होता है इसको. सो फर्स्ट वील ऐड द अनियंस. सो अनियंस को पहले सॉर्ट कर लो. अगर आपको लगता है कि स्टार्ट में ही सारा ऑयल और बटर चला गया है, एज एन एब्जॉर्ब हो चुका है, तो आप इसके अंदर इनिशियल पहले से ही डाल सकते हो ऑयल और बटर. बट अगर है तो देन आई विल रिकमेंड कि पहले आप इसका जो एग्जिस्टिंग फ्लेवर है उसको अनियन को एब्जॉर्ब करने दो, जो चिकन बटर और ऑयल का फ्लेवर है, उसके बाद आप डालो. सो नाउ व्हाट वील डू इज हम अराउंड 2 से 3 चम्मच अराउंड तेल डालेंगे. एंड एक
spoon butter. थोड़ा सा लो कर दो। सो आपको इसको मीडियम फ्लेम में पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है हमको बिल्कुल अनियंस को बिल्कुल ब्लैक नहीं करना है, हमको थोड़ा सा कुक करना है। और आप लो कर दो। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्लोव्स ये गार्लिक ले लिया है, आप 3-4 ले सकते हो, इफ़ यू लाइक मोर देन आप ज़्यादा भी ले सकते हो। हम एक नाइफ लेंगे फिर इसको डैप कर देंगे, सो बेसिकली ऐसे ओपन हो जाएगा। सो यू डोंट नीड टू कट इट। अब इसके एजेस ज़रूर काट दो। सो मैंने बस डैप कर दिया है। एंड हमारे पास ये सारे गार्लिक है, तो हम इसको हल्का सा बस हैंड क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे। आप और भी गार्लिक डाल सकते हो अगर आपको चाहिए और फ्लेवर चाहिए। सो बिकॉज आई एक्चुअली लव गार्लिक और मुझे गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने और एक्स्ट्रा डाल दिया है। आप इसको सॉटे करो, थोड़ा कम कर दो। अब इसको लो फ्लेम में कर दो जितना हो सके, जिससे जो बटर और गार्लिक और अनियंस हैं उसका फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए ना, बर्न नहीं कर रहे हो उसको। इसके बाद देर आर 2 ऑप्शंस। अगर आपके पास चिकन ब्रॉथ है, बहुत लोग के पास नहीं भी होता, आपको क्यूब्स मिलती है, आप उसको वाटर में डाल सकते हो। एंड एक ग्लास वाटर में लेकर के आप 1 क्यूब डाल दो और मिक्स कर लो, अब इसके अंदर ऐड कर दो। नहीं तो थोड़ा आप इसके अंदर हल्का सा वाटर डाल सकते हो, जिससे थोड़ी सिजलिंग कम हो जाए। मिक्स कर दो थोड़ा सा इसको। सो जब आपको लगे अनियन थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो रहा है, देन हम क्या करेंगे, विल ऐड द क्रीमीनेस टू द थिंग। जो क्रीमीनेस है वो 2 चीज से आएगी। एक तो हमने हाफ एंड हाफ बना रखा है ना। हाफ एंड हाफ होता क्या है, हाफ एंड हाफ इज एसेंशियली आप हैवी क्रीम जो लेते हो, नॉर्मल जो विपिंग क्रीम होती है, उसको और मिल्क को आप इक्वल प्रोपोर्शन में मिला देते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप बटर और क्रीम को इक्वल प्रोपोर्शन में मिला दो, तब भी हाफ एंड हाफ बन जाता है। बट ऑफकोर्स बटर इक्वल टू मिल्क का कैलोरी डिफिशिएंट तो को पता ही है। तो हमने अभी 1 कप लिया है। सो हम इसमें जब ये थोड़ा रिड्यूस होने लगे, हम थोड़ा बटर और ऑयल थोड़ा रिड्यूस हो जाए, तब हम इसके अंदर हाफ एंड हाफ डालेंगे, विच इज बेसिकली क्रीम। अगर आपको हाफ एंड हाफ नहीं पसंद है तो आप पूरा क्रीम भी डाल सकते हो। तो 1 कप या 1 कप एंड 1/4 आप डाल सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको फ्लेवर कितना क्रीमी कितना थिक चाहिए। सो जब ये थोड़ा बन गया है एंड आई थिंक गार्लिक भी हल्का सा ब्राउन होने लगा है, तो हम इसमें रिड्यूस कर दो, हल्का सा रिड्यूस करोगे फ्लेम को और क्रीम डाल देंगे इसके अंदर। हम क्रीम और मिल्क का मिक्सचर मैंने बना लिया है। ये हम लो पेस को डाल करके लो पेस को स्टर करेंगे, जिससे ये थिक हो जाए। बेसिकली ये आपकी ग्रेवी बनेगी इससे, या सॉस अगर आप कह लो। और इसको डालने के बाद आपको हल्का सा हाई कर देना है, तो उसको मीडियम पे आप डाल सकते हो। एंड ये आपको अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 मिनट तक कुक करना है, जिससे ये थोड़ा रिड्यूस हो जाए। सो जितना कॉन्सेंट्रेट होगा उतना बढ़िया रहेगा। एंड इसके बाद हम डालेंगे पार्मेज़ान अगेन, बिकॉज चीज़ जो पार्मेज़ान चीज़ है अगेन ये थिक कर देगी ग्रेवी को। सो हमको कितना डालना है, अगर 1/4 कप आप डाल सकते हो, 1/4 कप टू हाफ अ कप। अगेन अगर आपको ज़्यादा चीज़ी चाहिए तो आप हाफ डाल दो, अगर आपको मीडियम चाहिए तो आप 1/4 कप डाल सकते हो। सो यू कैन सी कि ये हल्का हल्का रिड्यूस हो रहा है, बट अभी भी थोड़ा बाकी है। सो उसको आपको एक बाउल अराउंड 1 मिनट टू 1.5 मिनट्स लगेगा इसको करने में। एंड उसके बाद हम चीज़ डालेंगे एंड देन उसके बाद हम चिकन इसमें ऐड कर देंगे। आपने नोटिस किया कि मैंने अब तक सॉल्ट नहीं डाला है। द रीजन बीइंग कि सॉल्ट आप थोड़ा आखिरी में डालो तो सही रहता है, बिकॉज जल्दी कुक हो जाती है चीज़ें। सो एवरी टाइम व्हेनेवर आई कुक, चाहे मैं ये बना रहा हूँ कुछ भी बना रहा हूँ, मैं हर समय सॉल्ट थोड़ा एंड में डालता हूँ। बट उसका एक डाउन साइड है कि आप सॉल्ट भूल मत जाना डालना कभी भी।
सब थोड़ा स्टर करते रहो जिससे बटर एंड द अनियंस एंड एवरीथिंग कैन मिक्स टुगेदर. एंड सो मेरे पास अभी अराउंड फुल कप है, मैं इसका सिर्फ अराउंड 1/4 कप विल भी अराउंड आप 3 से 4 चम्मच डाल सकते हो, वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 कप के बराबर होता है. सो ये थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो रहा है. अभी मैं इसके अंदर 4 चम्मच पार्मेज़न चीज़ डाल दूंगा. थोड़ा रिड्यूस करके फ्लेम थोड़ा रिड्यूस कर दो आप इसके अंदर. सो एज आई सेड, चीज़ आपका कॉल है. अगर आप और चीज़ी बनाना चाहते हो तो आप और चीज़ डाल सकते हो, बट 1/4 इज गुड इनफ. सो इसका एक ब्यूटीफुल मिल्की थोड़ा वाइट हो जाएगा एंड आपको ऑयल भी दिखने लगेगा जो स्प्लिट होकर के साइड में आ रहा है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स टुगेदर. इसमें हम हल्का सा पेपर डालेंगे, जो क्रश्ड पेपर हमारे पास है. एंड नाउ यू कैन सी ये थोड़ा थिक हो गया है, हल्की सी थिक इन ग्रेवी बन रही है. अगर आप देख सकते हो ये हल्का सा थिक होना चालू हो गया है. इट्स नो मोर लिक्विड, हल्का हल्का थिक हो रहा है और ये अनियंस के साथ बिल्कुल ब्लेंड हो जा रहा है. सो हम इसको और थोड़ा करेंगे जिससे थोड़ा और कंसिस्टेंसी बढ़ जाए इसकी. नाउ अब इसके अंदर वी वांट टू ऐड द चिकन. नॉन वेज चिकन इसके अंदर डाल दिया है. अब आप इसमें हल्का हल्का सॉस यू कैन डैब इट ऑन टॉप ऑफ इट, जिससे इसका फ्लेवर एब्जॉर्ब होने लगे. आप इसको रेगुलरली ट्विस्ट ऊपर नीचे कर सकते हो जिससे फ्लेवर पूरा एब्जॉर्ब हो जाए. नाउ हियर आपको याद होगा मैंने पहले स्लिट करा था चिकन को. इस सिचुएशन में जब ये सॉस एब्जॉर्ब कर रहा होगा उस टाइम पे ये पूरा सॉस इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा. ऑल्सो इनिशियली हमने ऑलरेडी इसको सॉल्ट से मैरिनेट कर दिया, तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है. एज पर योर टेस्ट यू कैन ऐड इट टू योर सॉस हियर. नाउ मैं थोड़ा सा इसके अंदर बस सॉस थोड़ा सा सॉल्ट डाल दे रहा हूँ जस्ट फॉर द सॉस, जिससे आपको अनसॉल्टी ना लगे जो भी खा रहा है. अदरवाइज यू कैन ऑलवेज ऐड एट द एंड, जब आप खा रहे हो यू कैन जस्ट ड्रिजल सॉस ऑन टॉप ऑफ इट. नाउ इफ यू सी, थोड़ा आप रिड्यूस कर देंगे इसको, फ्लेम को थोड़ा सा रिड्यूस. बिल्कुल लो कर दो. नाउ इफ यू सी, ये पूरा सॉस जो है ये बिल्कुल थिक हो गया है पूरा सॉस. एंड इसके अंदर यू कैन सी बटर, यू कैन ऑल्सो सी ये हल्का सा अनियंस एंड क्रीम एंड एवरीथिंग इज हियर. सो देयर आर 2 ऑप्शंस टू सर्विंग दिस. वन इज कि आप इसको, ये आपका सॉस ऑलमोस्ट रेडी है. एंड ऑलमोस्ट इसलिए मैंने कहा कि देयर आर 2 ऑप्शंस टू सर्विंग इट. वन इज दैट आप थोड़ा और चिकन को उसमें पका सकते हो, अराउंड फ्यू सेकेंड्स आप और पकाओ जिससे वो पूरा एब्जॉर्व कर ले सॉस को. या सेकेंड ऑप्शन इज कि हम यू कैन टेक आउट अ पीस फॉर योर सेल्फ, और हम बंद कर देंगे, इसको ऑफ कर दीजिए. दिस इज डन. एंड ये आपका सॉस, यू कैन ऐड इट फ्रॉम द टॉप. So you can add as much sauce as you want. It will make you more creamy. So you can see एक बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो गया है सॉस का. So this is your chicken with the sauce. Now depending on you, I'll just cut it and show it to you कि आप इसमें और सॉस डाल सकते हो. इसका राइस आप साथ में डाल सकते हो. एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है विच इज़ पास्ले. आप इसमें से पास्ले भी डाल सकते हो. एंड द बेस्ट थिंग इज आप इसको और चीज़ें बनाने के लिए और चीज़ भी डाल सकते हो ऊपर से.
समझ हमने चॉप कर लिया पार्सले को. या सो ये आपका चिकन इज रेडी एंड इसको हम कट करके दिखा देते हैं हाउ गुड इट इज. ये इजीली कट हो गया एंड इट्स वेरी टेंडर एंड यू कैन सी इट्स ऑल कुक बिकॉज कोई पिंकिश नहीं है, वाइट है पूरा अंदर से एंड ब्यूटिफुली ब्राउन हो गया पीछे की साइड से. So you can have it, enjoy it. It's very tender, and this is one recipe where you can make it at home. You can make it any time. लेकिन हार्डली हम लोग को 10 से 15 मिनट लगा अगर आपका सारी चीज़ें रेडी है. ऑफ कोर्स कट करने में, वेजिटेबल्स कट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट कुकिंग टाइम इसका 10 से 15 मिनट ज़्यादा नहीं होगा. चिकन भी अराउंड 10 मिनट पक जाता है आपका. अगर आपको कम टेंडर चाहिए, आपको थोड़ा डिपेंड की टेंडरनेस कितना आप चाहिए, आप उसका चिकन को कम कुक कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, सॉस में ज़्यादा कर सकते हो. सो दिस इज़ द रेसिपी चिकन की. डू ट्राई इट, इट्स ईजी. आप इसके अंदर एज आई सेड एक्स्ट्रा चीज़ डाल सकते हो, एक्स्ट्रा गार्लिक डाल सकते हो. अगर आप चाहते हो इसके ऊपर आप रोस्टेड गार्लिक जिसने करा था उसको भी ऊपर से डाल सकते हो, बिकॉज रोस्टेड गार्लिक ऑलरेडी बना होता है. तो इट्स अगेन योर फ्लेवर and your choice as to how do you want to eat it. So now enjoy this recipe, and you can also see the entire description things in the video itself. And the best thing is all of it is available in Spencer's, so don't need to go anywhere. Thank you. लो थोड़ा गंदा हो रहा है ये. ठीक है ठीक है. ठीक है. Cool. Alright, so now we are back. So now we are back again. Second recipe, as I said, दो हम बनाएंगे. Second recipe is with the fish. So fish हमने choose इसलिए करी because again very quick to cook, high in protein and also जो लोग lean body चाहते हैं उनके लिए best है because very less in fat and high on protein and very easy to digest. So today हमने we are taking sole fish. Sole fish, why? Because I like the crunch of it. काफ़ी crunchy होती है and there are in number of ways to make this. Another fact about sole fish is कि ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत डीप फ्राई नहीं करना है, बस आप शैलो फ्राई भी कर दोगे या स्टीम भी कर दोगे तब भी चल जाएगा. सो हमारे पास फिश के फिलेज हैं अराउंड, आप 80 ग्राम्स के 100 ग्राम्स के ले सकते हो फिले. एंड हम बनाएंगे अराउंड फिश इन लेमन बटर. So lemon butter because lemon of course एक citrusy flavor देता है and butter will add the creaminess to this. So it's very very easy. हमको सिर्फ इसको हल्का सा मैरिनेट करना है and then we gonna add it to the pan. थोड़ा सा पकाएंगे सिर्फ अराउंड 30 सेकंड्स टू 1 मिनट के अंदर तुरंत पक जाता है ये. एंड देन हम इसके अंदर सॉस ऐड कर देंगे. सो फर्स्ट हम पहले एक काम करते हैं, पहले सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं बिकॉज सॉस जो आपका होगा लेमन और बटर के साथ होगा. एंड देन वी कैन कीप दैट सॉस ऑन वन साइड और फट से
फिश बना करके उसमें ऐड कर देंगे. सो फर्स्ट सॉस बनाने के लिए हमको सिर्फ एक्चुअली 3 चीज़ की जरूरत है, 3 एक्चुअली 4. वन इज योर बटर, सो वी गोना ऐड बटर बिकॉज लेमन बटर है तो ऑफ कोर्स, एंड योर लेमन. सो वी गोना ऐड पहले बटर. हम इसको पहले बटर को अराउंड 1 मिनट तक पकाएंगे. सो बटर को पकाने का मतलब ये है कि बटर हैज सम वाटर इनसाइड इट. सो हम इसको जब पका करके इसका वाटर अलग कर लेंगे और हल्का सा ब्राउनिश हो जाएगा. सो डोंट वरी, हम इसको जलाना नहीं है और अराउंड लो मीडियम फ्लेम पे हमको बटर ऐड करना है, उसको पकाना है. सो उसके बबल्स होंगे, बबल्स निकलेंगे एंड देन स्प्लिट हो जाएगा वो एज अ लिक्विड. सो पहले हम पैन हीट कर लेते हैं. पैन आप इसको मीडियम हीट पे डालिएगा, मीडियम से लो हीट पे, बिकॉज हमको बटर को जलाना नहीं है, पकाना है. ठीक है. सो पहले हम बटर कर लेते हैं. तो बटर हम 4 टीस्पून डालेंगे. आप कम भी कर सकते हो अगर आप कम सॉस बनाना चाहते हो, बट सो अगेन मैं अनसॉल्टेड बटर ले रहा हूँ. उसका रीज़न ये है कि फिश में एनीवेज सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है. सो आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है, इसलिए अनसॉल्टेड बटर इज बेस्ट. एंड एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं ऐड करता है, यूजलेस नहीं, उसको सॉल्टी नहीं बनाता है. तो पहले हम इसको बटर को हीट करेंगे. सो यूल सी कि धीरे धीरे बटर अपने आप मेल्ट हो जाएगा एंड ये स्प्लिट होने लगेगा. एंड इसके अंदर जैसे ही यू कैन सी बबल्स कमिंग, दैट्स द टाइम व्हेन इट्स अबाउट टू स्प्लिट और वो अपना कंसिस्टेंसी बेटर कर लेगा. अब यहाँ पास बबल्स आना चालू हो गए. सो बेसिकली द बटर इज गेटिंग कुक्ड, इट्स एंटायर फ्लेवर विल बी देयर. एंड वंस इट्स कुक्ड विच इज अराउंड 1 मिनट या 2 मिनट, जब इसका थोड़ा ये ब्राउनिश नेचर आने लगेगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसके अंदर लेमन डालेंगे. सो प्रपोर्शन ये होता है कि जितना भी आप बटर डाले उसका 1/4 आप लेमन डालते हो, बिकॉज आपको ज्यादा यू डोंट वांट एक्स्ट्रा लेमनी टू इट. सो यू विल ऐड से 4 टेबल स्पून हमने डाला है, तो अराउंड 1 टेबल स्पून लेमन इसके अंदर डालेंगे. सो यू कैन सी अब all the butter has melted. Now it will go to the next stage where the liquid will split and then we'll get the flavor, the actual flavor of the butter. थोड़ा सा बढ़ा दो इसको. So as you can see, butter up, it's, you know, you'll see कि butter थोड़ा चिपकने भी लगा है, बट धीरे धीरे लिक्विड भी हो रहा है. सो ऑन द साइड्स you'll see कि साइड्स में हल्का सा ज्यादा लिक्विड होने लगा है और बीच में थोड़ा बबली होना चालू हो गया है. सो दैट इज द टाइम व्हेन यू विल नोटिस कि अब ये ऑलमोस्ट इट इज डन. सो अराउंड 30 more seconds to the butter. Yes. So now this is almost done. When you notice कि हल्का सा डार्क ब्राउन होने लगा है, that's the time when you remove it. So हम क्या करेंगे, इसको एक सेपरेट बोल में ले लेंगे और इसमें ट्रांसफर कर दो इसको. So ये बटर इज डन. पूरा बबल्स आने लगे इसके अंदर. So butter is all ready. कभी कभी हल्का सा व्हाइटिश ज्यादा होगा, कभी कभी येलो ज्यादा होगा, तो ऑल्सो डिपेंड्स कि आपने कितनी देर पकाया है. सो इट हैज टू बी लिटिल वाइटर एंड लेस येलो. इसके अंदर अब हम 1 चम्मच लेमन डालेंगे. सो यू आइदर कैन बाय एक रेडीमेड लेमन जूस और आप लेमन स्क्वीज भी कर सकते हो. आई प्रेफर दिस बिकॉज थोड़ा एफर्ट. सो हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से. इसके अंदर अब हम सॉल्ट पेपर डालेंगे. सो अगेन यू हैव एन ऑप्शन कि आप क्रश्ड पेपर ले सकते हो या पूरा होल पेपर ले सकते हो. सो मैंने क्रश्ड पेपर लिया है. अराउंड आप ½ टीस्पून डालेंगे इसके अंदर हम, और हम इसमें सॉल्ट डालेंगे ½ टीस्पून अगेन. आप कम भी कर सकते हैं इनकेस यू वांट लेस सॉल्टी. सो अगेन सॉल्ट इज टू टेस्ट एंड पेपर, तो आप यू कैन इंक्रीज इट बिकॉज पेपर इंक्रीजेज द फ्लेवर, इट विल मेक इट बेटर. सो नाउ हमारे ये सॉस रेडी हो गया है. सो यू कैन सी इसके अंदर पेपर के ग्रैन्यूल्स है एंड यू कैन ऑल्सो सी हल्का सा वाइटिश टेक्सचर है इसका इंस्टेड ऑफ द येलो रेगुलर येलो बटर. सो ये वार्म है, यू कैन यूज इट. ये ऐसी वार्म अराउंड 20 मिनट्स तक रहता है. सो आई एडवाइस कि अगर आप बना रहे हो तो फिश डालने से तुरंत पहले आप इसको बना के रख लो
या अगर आपके पास 2 एरियाज हैं तो आप बना भी सकते हो साइड में, एंड दिस वुड बी रेडी. सो सॉस इज रेडी. नाउ हम अपनी फिश की ब्रेडिंग बनाएंगे. सो हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं. सो अगेन ब्रेड क्रम्स आर ऑप्शनल बिकॉज बहुत लोग को जो ग्रेनी टेक्सचर होता है ब्रेड क्रम्स का वो अच्छा नहीं लगता. सो हम क्या करेंगे कि यू नो आइदर इफ़ यू डोंट लाइक इट देन यू कैन कम्प्लीटली स्किप इट. लेकिन अगर आपको पसंद है तो हम क्या करेंगे, हम इक्वल प्रपोर्शन में ब्रेड क्रम्स और मैदा और फ्लावर एक इसमें डाल लेंगे. आई वुड से कि आप मैदा को साथ में मिलाइएगा मत, बिकॉज आपको ज़्यादा मैदा चाहिए और कम अमाउंट ऑफ ब्रेड फ्लावर चाहिए, तो ब्रेड को साइड में कर दो, जिससे अगर आपको डालना है तो ऊपर से आप स्प्रिंकल कर सकते हो उसके अंदर. सो हमारे पास ये सोल फिश का फिले है. सो पहले आप इसको अच्छे से साफ कर लो. सो डैब इट, जिससे आपको एक्स्ट्रा वाटर ना रहे इसके अंदर. ऑल द एक्स्ट्रा वाटर शुड गो अवे. और अब हम इसमें हल्का सा सॉल्ट, हल्का सा पेपर डालेंगे. आपको यहाँ पर बहुत सॉल्ट, बहुत पेपर नहीं डालना है. एज आई सेड, फिश एनीवेज हैज इट्स ओन सॉल्ट, तो आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा बस डैब करने के लिए डालोगे. एंड यहाँ पर हमारा ये जो मिक्सचर है विच इज मैदा, फ्लावर एंड ब्रेड क्रम्स, आप इसके अंदर पूरा इसको मिक्स कर लो. ऑन द साइड व्हाट वील डू इज, जब तक ये थोड़ा एब्जॉर्ब हो रहा है हम अपना पैन प्रिपेयर कर लेते हैं. द सेम थिंग, आप इसके अंदर थोड़ा ऑलिव ऑयल डालोगे या इसके अंदर हमारा ऑलरेडी बटर है. सो हम पहले क्या करेंगे, पहले बटर को हीट कर लेंगे जो इसके अंदर रेसिड्यू बचा हुआ है, और हल्का सा विच इज बेसिकली 2 टीस्पून हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे. सो आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल सकते हो, रेगुलर फिश ऑयल डाल सकते हो. बेस्ट ऑयल जो इसका जाता है वो है आपका कनोवा ऑयल, बिकॉज उसका थोड़ा फ्लेवर होता है. बहुत लोगों को मस्टर्ड का भी फ्लेवर पसंद है, सो यू कैन ऐड एज पर योर टेस्ट. सो आप ज़्यादातर टिक्का विक्का बनाते होगे तो उसके अंदर पूरा डंक करना पड़ता है, पूरा एक आपको ऑयल का एक पूरा बाउल ऑयल यूज करना पड़ता है. बट इसमें हम सिर्फ थोड़ा सा ऑयल यूज करेंगे और उसी में पक जाएगा ये. थोड़ा सा भी लो रखेंगे फ्लेम को जब तक हम अपना ये प्रिपेयर कर रहे हैं. सो जो भी एक्स्ट्रा फ्लावर है अब उसको थोड़ा डैप कर दीजिए, निकल जाए. अगेन हमारे रेडी हो गया है. ऑयल भी थोड़ा हॉट हो गया है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस ऑयल हीट अप हो जाए. अब इसको हम एज आई सेड, ये जो सोल फिश होती है इसको बहुत पकाना नहीं पड़ता है. आप थोड़ा सा उसको पका दोगे तो वो हो जाएगा अराउंड, एज आई सेड, 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है इसको पकने में. थोड़ा सा हम हीट ऊपर कर देंगे, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर. ठीक है. सो ये एज आई सेड सोल फिश, इट इज क्रंची. सो आपको इसको इट विल गिव दैट क्रंच फ्लेवर. सो अंदर से सॉफ्ट होगी बट इन द टेक्सचर इटसेल्फ इट विल बी वेरी क्रंची. सो आपको इसको चेक करने का तरीका क्या है कि आपके पास टोंग है, टोंग निकालो. क्या आप इसको अराउंड 30 सेकेंड्स के बाद, अभी 30 सेकेंड्स हुए नहीं है, हल्का सा ये अब हल्का हल्का पक रहा है तो हमको थोड़ा सा और पकाना है. द वे टू जज कि आपका फिश पका है कि नहीं इज द वाइटनेस. सो अंदर से वो वाइट हो जाना चाहिए. ऐसे हल्का सा येलो टेक्सचर है, हल्का सा रेड येलो टेक्सचर है, वो चला जाएगा इसके अंदर, तब दैट मीन्स ये पक चुका है.
अब इसको हम फ्लिप कर देंगे अराउंड 30 सेकेंड्स से 1 मिनट होने के बाद। यू कैन सी कि धीरे धीरे पक रहा है ये भी, हल्का ब्राउनिंग आना चालू हो गया है। सो यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ जो व्हाइट है दैट मीन्स वो पक रहा है और ये हल्का सा रेड है। सो जब तक ये पूरा धीरे धीरे करके व्हाइट ना हो जाए दैट मीन्स तब तक आपको कुक करना है इसको। बट आप देख सकते हो कि हल्का सा ब्राउनिंग आना चालू हो गया है, दैट इज द मैदा एंड द ब्रेड क्रम्स। अगर आपको लग रहा है दिस अनदर थिंग जो आप फिश में नोटिस करते हो या चिकन बनाते टाइम कि आपका पैन का जो अगर सेंटर थोड़ा उठा हुआ है तो बिल्कुल साइड में चला जाता है। तो व्हाट यू शुड डू इज ऑलवेज पुश योर चिकन और फिले ऑन द साइड, जिससे वो धीरे धीरे पकता रहे। एंड सेंटर में इसलिए भी लगाना चाहिए बिकॉज हीट बिल्कुल सेंटर से आती है। तो आप अगर वो ज्यादा पक जाएगा तो एक साइड एक कोई चिकन का पीस या फिश का पीस ज्यादा पक जाएगा और बाकी नहीं पकेगा। सो धीरे धीरे आप चेक करते रहो। ऑलमोस्ट होने वाला है ये, यू कैन सी दोनों साइड से ऑलमोस्ट पक गया है ये। So you can see ये अच्छा टेक्सचर आ गया इसके अंदर, ये अपने आप ही ये टूट रहा है, दैट मीन्स इट्स ऑल ये पकने वाला है ऑलमोस्ट। अदरवाइज अगर ये पका नहीं होता तो ये ड्रिप नहीं करता, ये टूटता नहीं इसके अंदर। इट्स ऑलमोस्ट डन। हम क्या करेंगे अब, इसको बंद कर दो आप। दिस इज ऑलमोस्ट डन। तो हम क्या करेंगे, एंड इसका बटर आप इसके ऊपर ड्रिजल कर सकते हो फॉर मोर फ्लेवर। सो you'll have your sauce ready here. So हम इसको गार्निश करने के लिए आई हैव ऑल्सो हैव लाइक स्प्रिंग अनियंस एंड पार्सले अगेन। सो आप क्या कर सकते हो कि ये सॉस आपका जो बेसिकली एक सिरप, लेमन एंड बटर का सिरप जो है, बिकॉज इसका एक्चुअल फ्लेवर बटर से आएगा। सो आप यू कैन ऐड 1 टीस्पून अपना पूरा बटर इसके अंदर, एंड इस पे आप स्प्रिंग अनियंस डाल सकते हो एंड पार्सले। सो this is basically your dish, which is your fish in lemon butter, and you can also have parsley to it, you can add spring onions to it. आप इसके ऊपर अगर आप गार्लिक के फैन हो जैसे मैं, आप रोस्टेड गार्लिक भी डाल सकते हो उसके ऊपर। सो दैट इज योर कॉल। यू कैन सी द बटर, इसके अंदर बटर निकल रहा है, विच इज बेसिकली द थिंग विच इज गोना ऐड द फ्लेवर, एंड द फिश इज परफेक्टली कुक। मैं एक बार काट के दिखा देता हूँ आपको हाउ गुड इट लुक्स। So it is so tender कि ये so you can see almost the fork is going through and it's all cooked. So again these two dishes, so one is your chicken and the other is a fish. So both again you can cook very easily at home. This is a fish, basically lemon butter and very healthy. It has butter but थोड़ा तो fat add करना पड़ता है। And your second dish is your chicken in garlic sauce. So again इसके अंदर you'll have like umpty flavor of garlic and chicken in it. So follow the recipe after this. You can follow it, you can make it. आप इसको upscale कर सकते हो in case अगर आपको add more sauce to it. आप इसके साथ as I said you can consume it with rice, you can consume it with any tidbits like even nachos if you want to add the nachos or the crisps. You can do that. You can add it with rice again, as I said, or probably
चपातीस के लिए थोड़ा सा ड्राई मे बी, but again yes, it depends on your flavor, your mood. I generally have it with some salad around sorted some vegetables with the same butter. So हमारे पास जिसमें butter और oil का जो mixture पड़ा रहता है, I add carrots or zucchini or beans, anything that you like, and उसके बाद you can just add it as a complement to this. This, as I said, is a very protein packed dish. आप अगर आपको डिनर पे खाना है, आपको लंच पे खाना है, कभी भी आप कंज्यूम कर सकते हो. And with this, I would say this is the best dish that I like in my whole itinerary of chicken and lemon. Fish. So enjoy this dish. Have a good time. As I said, you can follow the few nuggets and the tips that I told you about. And after that, the recipe details of both these dishes, which is the chicken and garlic and your lemon butter in fish, sole fish, is there. So follow the dish and hope you enjoy it. Have a good time. And make sure you shop from Spencer's because everything here was shot from Spencer's, by the way. See you. Bye.